just preparing and getting ready. और पिछले सप्ताह हमारे जो है अमेरिका में 1 घंटा पीछे हम लोग चले गए, तो इसी के कारण जो है मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अभी भी मैं बिस्तर में ही था। I'm sorry that this has caused, not intentionally, but it so happened. I apologize for it because this is a ministry that which honor God, and there should not be any slackness or weakness should come in between. What happened from my part, I apologize it. I hope next week onwards, so we'll start instead of 8:30 here, I will have to start at 7:30. Is that right? Yes, uncle. Okay. So next Thursday onwards, we will start. I will start from American time 7:30 a.m., which is 6:40 or 6:30 in your place. Anyway, thank you for your patience and the love that you have been extended towards me. I apologize once again, and let us come to the word this evening. और मैं सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, और आइए हम लोग इस संध्याकालीन समय में परमेश्वर का वचन की ओर हम लोग चलते हैं। So we are focusing on the life of Joseph. It's a journey from tragedy to triumph. और हम लोग जो है यूसुफ का जीवन चरित्र को हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी संकट भरा जीवन से कैसे वो उद्धार के कैसे ही विजय की ओर वो जाते हैं। We will focus this evening in Genesis chapter 42, verse 1 to 38. और आज हमारा ध्यान जो है 48वां उत्पत्ति उसका 48वां अध्याय 1 से 38 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। In the last chapter, we saw Joseph brought from prison to see if he could interpret the Pharaoh's dream. और पिछले जो अध्याय थी उसमें हम लोग देखे थे कि यूसुफ को फारो के सामने लाया जाता है ताकि फारो जो सपना देखा है फिरौन राजा, उस सपना का अर्थ को वो प्रकाश कर पाए। The title this class is for this class is how to have a clear conscience. आज का जो अध्ययन का जो मुख्य विषय है, शीर्ष नाम है कि हमें कैसे एक बोधता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। So that is the title for today's class, and we are looking into Joseph told Pharaoh that the dream meant there would be 7 years of a bountiful harvest followed by severe 7 years of famine. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, यही आज का मुख्य विषय है। यूसुफ ने उस फिरौन राजा का स्वप्न का अर्थ को वो प्रकाश करता है कि 7 साल तक भरपूरी से जो है उपज होगी, और उस उपज के पश्चात बहुत बड़ी एक 7 साल की भूखमरी आने वाली है। उस स्वप्न का अर्थ को यूसुफ प्रकाश करते हैं। Impressed by Joseph's ability to interpret the dreams and his wisdom in suggesting the solutions, the Pharaoh made Joseph governor of all Egypt. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, यूसुफ जो अर्थ को प्रकाश किया था, उस बुद्धि को देखते हुए और उसके साथ साथ उसका जो उपचार उसने दिया था, ये सब बातों को देख करके फिरौन राजा बहुत ही खुश हो गए थे, और इसीलिए उनको मिस्र देश का उनको गवर्नर उन्होंने बनाया था। If you look at verse 40, chapter 41, verse 57, we read like this: So all countries came to Joseph in Egypt to buy grain because the famine was severe in all the lands. और यदि हम 47वां अध्याय उत्पत्ति उसका 47वां अध्याय और 57 का पद को यदि हम लोग देखेंगे, तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि सब के सब लोग यूसुफ के पास आ करके उन्होंने जो है अनाज उसके पास खरीदने के लिए वे लोग आए थे। So this is the setting of the next
step in Joseph's life. God has set the stage for the next scene in the life of Joseph. और यही थी जो है एक जो है पृष्ठभूमि बनाया था और आगे जाकर के परमेश्वर की सेवा वो करने वाले थे. And the first thing we need to focus our attention is to the alarmed brothers of Joseph. We are talking about Joseph's brothers were disturbed at this point. They were troubled in their mind. और हम लोग सबसे पहला विषय को हम लोग देखते हैं कि अभी वर्तमान में यूसुफ का जो भाई लोग थे अपना मन में बहुत ज्यादा वे लोग विचलित हो गए थे. You know why? The reason, they treated Joseph in such a way that when they heard about Egypt and Joseph, their mind is alarmed. They were troubled in their mind. और जब उन्होंने क्या है ना यूसुफ के विषय में उन्होंने सुना तो फिर उनका मन वास्तव में बहुत ही ज्यादा विचलित हो गई थी कि यूसुफ इस तरीके से वहां पर काम कर रहा है. So chapter 42 verse 1 to 5, if you read that, in the first 5 verses of chapter 42, the scene changes from Egypt to Canaan, where there was widespread famine. और हम लोग क्या देख सकते हैं 42वां अध्याय पहला पद से लेकर के 5वां पद तक हम लोग यदि देखेंगे तो वहां पर हम लोग मिस्र देश से उस कनान देश की जो दशा है परिस्थिति है संपूर्ण रीति से परिवर्तित हो जाता है. See, look at verse 1 and 2. We read like this: when Jacob saw that there was grain in Egypt, Jacob said to his sons, "Why do you look at one another?" And he said, "Indeed, I have heard that there is grain in Egypt. Go down to that place and buy for us there, that we may live and not die." और आप देखिए जो है 42वां उत्पत्ति उसका 42वां अध्याय पहला और दूसरा पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तब ऐसा लिखा गया है, जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है तब उसने अपने पुत्र से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसीलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहे. The phrase "why do you look at one another" is very revealing. और जब हम एक उस शब्द को देखते हैं, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो, ये हमें अर्थ बहुत बड़ी अर्थ को परिप्रकाश करता है. When Joseph's brothers heard there was grain to be purchased in Egypt, why did they look so perplexed at one another? और जब उन्होंने मिस्र देश में अनाज मिल रहा है इस बात को सुनते ही वे लोग क्यों इतना द्वंद्वित हो गए थे? Why would they disturbed about going to Egypt? और जब मिस्र देश में जाने के लिए वे लोग क्यों इतना विचलित हो गए थे? We can find the answer to this question in chapter 37 verse 28. We read like this: then Midianite traders passed by, so the brothers pulled Joseph up and lifted him out of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver, and they took Joseph to Egypt. और हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका उत्तर यदि हमें पाना है तो 37वां अध्याय उसका 28वां पद में हम लोग देख सकते हैं. सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और यूसुफ को मिस्र में ले गए. Now they were suffering the consequence of their thoughtless act. और अभी वर्तमान में जब वो लोग विचार ही नहीं किए थे, सोचे भी नहीं थे, ऐसा काम उन्होंने किया था, उस काम के लिए अभी वे लोग बहुत ही विचलित हैं. The brothers knew that if they traveled to Egypt, there was the possibility of coming into contact with Joseph serving as a slave there. और वे लोग इसीलिए डरे हुए थे क्योंकि वे लोग यदि मिस्र देश में जाएंगे तो उनका भाई एक गुलाम की तरह काम करते हुए उनको मिल सकता है, इसीलिए वे लोग डरे हुए थे. From the day they sold him, every time they heard his name or the word Egypt,
their consciences reminded them of their horrible sin, what they committed towards his brother. और जिस दिन उन्होंने बेचा, तब से लेकर के जो है उसी दिन से जब मिस्र का नाम को वो लोग सुनेंगे, तो उनके चेहरे पे जो है एक जो है वे लोग विचलित वो लोग दिख रहे थे, वो परेशान दिख रहे थे। If we do not confess and forsake our sin, God sends certain things into our lives to set off the alarm we call as a conscience. और जब हम अपने पापों को कबूलते नहीं, हमारा पापों का प्रायश्चित हम लोग यदि नहीं करते, तो परमेश्वर ऐसे एक चेतावनी हमारे जीवन में वो देते हैं, और वो एक जो है विवेक व बोध जो है हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। If we do something wrong in the life of others, or co-brothers or believers or other people that come across, that will always reminds us that there is something wrong in between the relationship. So that will always bother us. So we have to be very careful in dealing and talking and in our actions, in our words, while we deal with other believers. और जब हम अपने भाई के विरुद्ध या फिर हमारे बहनों के विरुद्ध कुछ हम लोग करते हैं, या फिर हम दोनों के बीच में ऐसा यदि मेल मिलाप नहीं होता है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि जो है हमारा मेल मिलाप नहीं होने से हमें हर समय हम लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि उसके साथ मेरा पाला नहीं पड़ता, उसके साथ मेरा मेल मिलाप नहीं है। इसी के कारण इस बात को लेकर के हम किसी न किसी तरीके से परेशान रहते हैं। In the case of Joseph's brothers, the alarm was sounded by the word Egypt, and it was the famine that brought up that word. और क्या हुआ है ना, यूसुफ का भाइयों का जीवन में वो एक ही शब्द थी जो उनको चिता रहा था, उनको जो है परेशान कर रहा था। वो शब्द मिस्र देश का था। और ये मिस्र देश कैसे आया ना, जैसे ही अकाल आया था, उस अकाल के कारण ही ये मिस्र देश का नाम उनके सामने आया। So God always uses adversity to set off our consciences. और परमेश्वर ऐसे विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में लाता है, ताकि हम जिस बात को हम भूल गए हैं उसको फिर से हमारे जीवन में विवेक के जरिए या बोध जो है उस बात को, जिस बात को हम भूल गए हैं, अनजान है, उसको फिर से याद दिला दे, स्मरण दिला दे। An example of this truth is the story Jesus told of the prodigal son in Luke chapter 15. और यही एक उदाहरण लूका रचित सुसमाचार में उसका 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में कहते हैं। In that chapter we see the father had two sons. उस अध्याय में हम लोग देखते हैं कि एक पिता का दो पुत्र थे। One day the younger son of the two humiliated his father and demanding his inheritance. और एक जो बेटा था, छोटा बेटा, अपना पिता को नीचा दिखा करके उसका जो हिस्सा था, उस हिस्सा को उससे मांग लेता है। The father gave him his inheritance, which the younger son took to a far country and squandered in the wild living. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, उसका पिता जो छोटा बेटा का मांग को वो पूरी करते हैं और जो हिस्सा था उस हिस्से को दे देते हैं, और वो छोटा लड़का अपना जो है धन को ले करके वो दूसरे गांव में व दूसरे देश में वो घूमने के लिए, पैसा लुटाने के लिए वो चला जाता है। Finally he found himself in the most despicable or pitiable place for a Jewish boy feeding swine. और क्या था ना, वो आखिरी में इस घटना को हम लोग देखते हैं, वो लड़का इतना अमीर था, एक यहूदी लड़का था, फिर भी वो अभी दूसरों का गुलामी करते हुए हम लोग देखते हैं। वो गुलामी ये थी कि सूअर को वो चरा रहा था। He was so poor and hungry that he would gladly have filled his stomach with the pods
that the swine ate. और क्या था ना, वो इतना भूखा था, इतना प्यासा था, और जो सूअर लोग जिस भोजन को खा रहे थे, उसी भोजन को खा करके अपना पेट को वो भर रहा था। It was through this famine in his life that the younger son decided to do what we read in Luke chapter 15, verse 18 and 19. और जो है यही घटना के कारण ही वो छोटा लड़का जो है एक काम को वो करता है, वो अपना मन में निश्चय कर लेता है। वो 15 अध्याय उसका 18 और 19वां पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। We read like this, I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. और वो क्या कहता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के नाई रख ले। In the midst of adversity, the younger son came to himself. He came back to his senses and realized he needed to return to his father and confess his sin. और ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, ऐसे परेशानी और कठिनाइयों का परिस्थिति के बावजूद वो पश्चाताप कर लेता है और अपना पिता से जा करके माफी मांगने के लिए वो तैयार हो जाता है। Often God allows us to go through some kind of famine to bring us to our senses, awaken our consciences, so we will come to genuine confession and restoration. और ऐसे ही परिस्थितियां, ऐसे विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में भी परमेश्वर लेकर के आते हैं, ताकि वास्तव में अपना जीवन में हम जो है पश्चाताप करें, हमारे जीवन में परिवर्तन आए। इसीलिए ऐसे विपरीत परिस्थितियां परमेश्वर हमारे जीवन में लाते हैं। So thus, it was this famine that God was using to awaken the consciences of Joseph's brothers. और ये उनके जीवन में जो अकाल ही था, वो अकाल के कारण, जो भूखमरी के कारण जो है वे लोग इस बात को समझ पाए और वे मिस्र में यूसुफ के पास वे लोग जाएं। So if you look at verse 5 in chapter 42, reluctantly Joseph's 10 brothers left the youngest Benjamin behind and went to buy grain among those who journeyed for the famine was in the land of Canaan. और अंकल, which verse you told? 42 verse 5. और 42वां अध्याय 5वां पद में हम लोग देख सकते हैं, सो जो लोग अन्न मोल लेने के लिए उनके साथ लेने आए, उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। So this brings us to our next point. और ये बात जो है हमें अगला पॉइंट की ओर ले जाता है। Now, if you focus on verses 6 to 24, we will see that Joseph is analyzing his brother. The analysis by Joseph, thinking about his brothers, it is a detailed examination of something. The analysis means Joseph is examining the life of his brothers, the dealing towards him, and all these things. और हम लोग देखते हैं कि जो है यूसुफ, ये जो भाई लोग वहां पर जाते हैं तो उनके भाइयों को वो विश्लेषण करते हैं। So the analysis by Joseph is the next point. और हमारा दूसरी जो विषय है, बिंदु है, वो यूसुफ के द्वारा विश्लेषण। So Joseph is going to see his brothers. He's going to analyze his experiences and going through all these years. और यूसुफ अभी जो है अपना भाइयों को वो विश्लेषण करने जा रहे हैं, और इतना दिन तक जो समस्याओं का सामना वो कर रहे थे, आज वो विश्लेषण करने वाले हैं। When Joseph's brothers arrived in Egypt,
they had to stand in line to buy food from Joseph, who sold food to all the people of the land. और क्या था ना, जब वे लोग मिस्र देश में दूसरे लोगों के साथ यूसुफ के भाई लोग आए थे जो अनाज मोलने के लिए, उस वक्त यूसुफ के भाई लोग भी उसमें जो लाइन उन्होंने लगाया था, जो कतार बनाई थी, वहां पर खड़े होकर Now, अनाज खरीद रहे थे। now Joseph was nearly 40 years of age. और अभी यूसुफ का उम्र को देखें तो करीबन वो 40 साल के थे। He had been sold into slavery at the age of 17. और उनको करीबन 17 साल था उस वक्त उनको जो है गुलामी करने के लिए उनको बेच दिया गया था। He was a slave and a prisoner for 13 years. और वो जो है एक गुलाम और उसके साथ साथ एक जो है कैदी हो करके करीबन 13 साल अपना जीवन को व्यतीत किया था। He interpreted the dream of Pharaoh at the age of 30. और जब उनका उम्र 30 साल हुआ था उस वक्त उन्होंने फिरौन का उस स्वप्न का अर्थ को प्रकाश किया था। So the 7 years of plenty had passed, and we are now at least a year or two into the famine. और अभी 7 साल की जो उपज जो हुई थी, भरपूरी से जो उपज हुआ था, अभी वो खत्म हो चुकी है। अभी करीबन अकाल आकर के करीबन 1-2 साल हो चुका है। So Joseph's appearance had certainly changed in the last 20 years. और अभी हम लोग देखते हैं कि यूसुफ का जीवन इस 20 साल के समय में संपूर्ण रीति से उनके जीवन में परिवर्तित हो चुका है। Now he was wearing clothes as an Egyptian, and his speech and the language and appearance all changed. और यूसुफ का जीवन को देखें तो वस्त्र में परिवर्तन देख सकते हैं, क्योंकि मिस्र में रहते हुए मिस्र का भाषा, मिस्र का वस्त्र और सब कुछ वो उसी देश का भाषा और सब कुछ वो परिवर्तित हो गए हैं। When Joseph's brothers came before Joseph, they bowed down before him with their faces to the earth. और जब यूसुफ के सामने उनके भाई लोग आते हैं तब सबके सब भाई लोग यूसुफ के सामने नतमस्तक होते हैं। You might remember Joseph was telling about the dream in chapter 37, verse 9 and 10. You know, this fulfilled what dream was Joseph's recorded in that chapter. और जब हम आपको याद होगा, जब हम 37वां अध्याय उसका 9वां और 10वां पद को पढ़ेंगे तो यूसुफ ने एक स्वप्न देख करके उनके भाइयों के सामने क्या कह रहे थे, उस स्वप्न को आप स्मरण करते होंगे। So now Joseph's brothers are there, and imagine what must have gone through Joseph's mind when he recognized his brothers. और आप सोच करके देखिए, जब यूसुफ उनके भाइयों को पहचान लेते हैं तो उनके मन में कौन-कौन सी ऐसी बातें चल रही होगी। Now he had the perfect opportunity to get even, to become arrogant and to disown them, because this is a good chance. You know, after they treated Joseph in such a way that Joseph got another chance. But imagine how Joseph is dealing that circumstance. और आप इस बात को सोच करके देखिए, जब यूसुफ को उन्होंने बुरा बर्ताव किया था, अभी यूसुफ को बहुत अच्छा एक मौका मिला है कि उनके साथ भी जैसे उन्होंने किया था उसी तरीके से बर्ताव करने के लिए, उसी तरीके से व्यवहार करने के लिए। लेकिन देखिए कि यूसुफ किस तरीके से अपने भाइयों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। Joseph is in full power of that country. He could have ordered them immediately to execute. और यूसुफ के पास वो शक्ति और सामर्थ्य थी, सब कुछ अधिकार है, और जो है वो चाहते तो इन सभी लोगों को एक ही पल में जो है हत्या करने के लिए कह देते। But Joseph is not that lenient, but he decided to analyze their hearts to see if they had changed in this last 20 years. और यूसुफ उस तरीके का सोच और विचार रखने वाले में से नहीं
थे, बल्कि वो इस तरीके से परखने का प्रयास कर रहे हैं इस 20 साल के दरमियान उनका दिल में कोई परिवर्तन आया है या नहीं, उसका परख वो कर रहे हैं। Questioning them about their reason for coming to Egypt. Why did they come to Egypt? और सबसे पहले तो वो सवाल करते हैं कि वे क्यों मिस्र देश में आए हुए हैं। Finally, Joseph said to them, "You are spies. You have come to see the nakedness of this land, so to steal the secret of this land." So they are treating. Joseph is, skillfully talking to them that they are spies and they came here for different purpose. और वो सबसे पहले तो इस तरीके से वो बातें करते हैं कि वो लोग तुम लोग इस देश की जो है भेदी तुम लोग हो और इस देश की भेद को लेने के लिए तुम आए हो, इस तरीके से सबसे पहले उनका मन को वो जांचते हैं। Now, though the brothers vehemently denied being spies, Joseph devised a plan to analyze his brothers' hearts. और सबसे पहले तो वे लोग मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग तो कोई भेदी नहीं है। फिर भी यूसुफ अपना मन से इस बात को तय करते हैं कि उनका हृदय कैसा है, वो परखने का प्रयास कर रहे हैं। The first thing Joseph said to his brothers is, "One of you go and bring your brother Benjamin, and the rest of the brothers be kept in prison." और सबसे पहले तो इस बात को कहते हैं कि तुम में से कोई जा करके अपना भाई बिन्यामीन को लेकर के आए और बाकी सभी लोगों को कारागृह में, बंदी गृह में रखा जाए। Joseph wanted to impress upon them the extent of his power over them. और सबसे पहले तो अपना अधिकार उनके सामने वो जताने का प्रयास कर रहे थे। This is not a revenge, but Joseph want to analyze their hearts, and Joseph want them to realize their life, how their behavior. So all these things were planned purposely, not to do any revenge to his brothers. और अब देखिए, यूसुफ कोई बदला लेने का मनोभाव से नहीं कर रहे, बल्कि वो सबसे पहले वो तय कर लेते हैं कि अपने भाइयों का दिल अभी परिवर्तित हुआ है या नहीं। वो परखने के लिए ये सब काम योजनाबद्ध तरीके से वो कर रहे हैं। His plan was designed to reveal their real attitude towards his only full brother, Benjamin. और उनका सोच और विचार को वो जो है परिवर्तन जो है परखने के लिए उनका जो अपना भाई था, उस भाई के प्रति उनका प्रेम कैसा है, वो बातों को वो समझने के लिए ये सब काम कर रहे थे। After they spent 3 days in prison, Joseph revised his plan. और 3 दिन उन्होंने जो है जेल में अपना समय बिताने के बाद फिर से अपना योजना को उन्होंने जो है परिवर्तित किया। So he announced, "One of your brother be confined in the prison, and the rest of the brothers could go and carry grain for the famine of your houses. Then return with your youngest brother to me." फिर बाद में वो क्या करते हैं ना, उस योजना को बदल देते हैं और कहते हैं, तुम में से एक भाई जो है कैदी हो करके इस जेल में रहें और सबके सब अनाज उठा करके तुम लोग जा करके अपना भाई जो घर पे हैं उसको तुम ले करके आना और इसको छुड़ा करके ले जाना करके वो कहते हैं। So your words will be verified, and I can believe that, and you shall not die. और वो कहते हैं कि तुम्हारी बातों पर मैं यकीन करूंगा और तुम मरोगे नहीं करके वो कहते हैं। In verse 21 and 22, the brothers were recollecting what they did to Joseph and the experience in the pit. All these things were causing their fear and peril. और जब हम लोग 21 और 22 आयत को हम लोग पढ़ेंगे 42वां अध्याय का, तो सबसे पहले तो जो यूसुफ के साथ उन्होंने बुरी जो बर्ताव किया है, वो सब बातें उनके मन में जो है उग रहा था, फिर से उनको याद दिला रहा था। See, Joseph spoke to them through an interpreter, so they did not know he could understand what they were saying in Hebrew. और जो है pardon me uncle, Joseph spoke to them through an interpreter. He's speaking the Egyptian language,
So they did. He could understand what the brothers were talking in Hebrew. और अब देखिए कि जो है वो लोग इब्रानी भाषा में बात कर रहे थे, इसीलिए एक जो है अनुवाद करने वाला, जो मिस्र देश का भाषा में अनुवाद करने वाला एक व्यक्ति को उन्होंने रख करके उनके साथ उन्होंने बातें किया। So Joseph heard his brothers' distress, they were trouble in their heart. और यूसुफ ने देखा कि उनके जो भाई लोग थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान में हैं। See, 20 years had not diminished or removed their guilt. For Reuben says concerning Joseph, therefore, behold, his blood is now required of us. और अब देखिए 20 साल के बाद भी इस बात को उन्होंने भूला नहीं है। और रूबेन क्या कहते हैं कि अभी जो है 20 साल के बाद भी उसका लहू पलटा हमारा ले रहा है करके रूबेन इस बात को बताते हैं। At this point, it is clear that Joseph's harsh treatment and imprisonment of his brother was not a revenge, but a means to appraise his brother's hearts and to show them a spiritual truth later announced by Moses to the tribes who refused to go with him to take the promised land. और अब देखिए ये सब कुछ सच्चाइयां जो है यूसुफ अपने भाइयों के साथ बताने के लिए ही कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में जो अपने भाई लोग हैं, जो भाई लोग के सामने रखा जाता है, ताकि वे लोग आ करके मिस्र देश से छुड़ा करके ले जाएं। So Numbers 32:23 says, this land be your possession before the Lord. और गिनती का पुस्तक उसका 23वां अध्याय 33वां आयत में हम लोग देखते हैं, यही देश ही तुम्हारा जो है देश बनेगा और इसी का तुम अधिकारी होंगे। When Joseph saw his brother struggling with their consciences and that they believed that justice was catching up with them, he could not contain his emotions. So he turned himself away from them and go in a private place and started weeping. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ये घटनाक्रम को जो देखने के बाद यूसुफ जो है अपने आप को संभाल नहीं पाए और वो क्या करते हैं कि वो जा करके अकेले में रुक करके वो रो पड़ते हैं। Thirdly, we can see, in this passage, he activated consciences, verses 24 to 28. और 24वें पद से लेकर के 28वें पद में हम लोग यदि देखेंगे तो फिर उनके मन में एक बोध उन्होंने दिलाया था, इस बात को उन्होंने कार्य कराया था। See, to hide his forgiving and loving heart and to strike fear into his brothers, Joseph returned to them again and talked with them. और आप देखिए उनके मन में जो है भय फिर से दिलाने के लिए फिर से यूसुफ जो है वापस आते हैं और फिर उनके साथ वार्तालाप करते हैं। See, Joseph's heart was so clear, and when he saw his brothers, his heart was burdened, and he went inside in a room and then cried, and then he came back. He cannot stay there. He came back and started talking to them again. और अब देखिए जब वो इस घटनाक्रम को देखते हैं, वो अकेले में जा करके रोते हैं, बहुत गिड़गिड़ा करके रोते हैं, फिर वहां पर वो रुक नहीं पाते, अपने भाइयों का परेशानियों को देख करके फिर से वो वापस आ करके उनके साथ वो बातें करते हैं। Look at verse 24, and he took Simeon from them and bound him before their eyes. और वो क्या करते हैं, 24वां पद को यदि देखते हैं तो उन्होंने सिमियोन को लेकर के उनके सामने, सभी के सामने वो बांध देते हैं। To put Simeon in chains before their eyes would put horror in his brothers' hearts, for they would judge him to be cruel, vindicative. और अब देखिए ना, सबसे पहले जो है सिमियोन को बांध करके
जो है उनके सामने वो रखते हैं, ताकि वो यूसुफ को एक क्रूर व्यक्ति करके समझेंगे या नहीं, इस बात को परखने के लिए सिमियोन को वो बांध देते हैं। But Joseph knew it would require harsh treatment to bring them to repentance. It's just their desire. His desire was just to bring them back to repentance and see their sin in their life. और अब देखिए, उनके साथ जो है ऐसे ही थोड़ा कठिन तरीके से एक बुरा बर्ताव थोड़ा सा करने का जरूरत थी, ताकि वे लोग अपना पापों को कबूले, अपना पापों को वे लोग जो है समझ जाए कि वे लोग उन्होंने गलती किया है। इस बात को समझाने के लिए ही इस तरीके का व्यवहार यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। So that is our lesson, when things like that happens, when God puts us in adverse circumstances and we face difficulties, the intention of God is that we should come back to repentance and see where we stand in the relationship with the Lord. और आप देखिए, जब ऐसे ही परिस्थितियां हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही लाता है, ताकि हम उस सच्चा परमेश्वर को पहचाने कि हम किस दशा में हैं, कहां पर हम लोग खड़े हैं और क्यों हमारे जीवन में ऐसा परेशानियां आई है। इस बात को समझ करके परमेश्वर के सामने नम्र होकर के उसके पास आए। इसीलिए परमेश्वर ऐसे विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में लाते हैं। This is the way God always deal with us. और इसी तरीके से ही परमेश्वर आपकी और मेरे साथ व्यवहार करते हैं। When there is sin in our lives, and the presence of conscience and the pressure of conscience does not bring us to repentance, it requires more drastic action on God's part. और जब हमारे जीवन में पाप होती है, अपराध होती है, तो हम वास्तव में पश्चाताप नहीं कर पाते हैं, प्रभु के सामने नहीं आ पाते हैं। इसीलिए स्वयं परमेश्वर ही हमारे जीवन में कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हम पापों से पश्चाताप कर पाए। For example, the prophet Jonah refused to go to the Gentile city of Nineveh to preach and bring it to repentance as God commanded, but instead he took a ship to Tarshish. और हम देखते हैं, जो योना भविष्य वक्ता थे, उनको परमेश्वर ने निनावे जा करके उस अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर को सुसमाचार को प्रचार करना था, लेकिन वो परमेश्वर की बातों का अनाज्ञाकारी हो करके वो एक जहाज पकड़ लेते हैं, जो जहाज की टार्शीश की ओर जा रही थी। His conscience was not enough to cause repentance, for in the mind of his sin and running from God, he was fast asleep in the hold of the ship, in the bottom deck. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ना अपना पापों को वो भूल गए थे, वो पश्चाताप नहीं कर पाए थे, बल्कि परमेश्वर से दूर जाकर के उस जहाज के निचले हिस्से में वो जाकर के सो रहे थे। See, when we sin and our conscience keeps us awake, tossing and turning all night, there is hope. और आप देखिए, जब हम लोग पाप करते हैं, पाप करने के बाद हमारी जो विवेक है हर समय हमें आघात करती है, हमें बोध दिलाती है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम जो है अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो। ऐसा करके हमारे विवेक गवाही देती है। However, when we sin and go home, lie down and go fast asleep, God must take drastic action. और यदि हम पाप करके भूल जाते हैं और अपना घर में जा करके आराम और चैन के नींद सोते हैं, तो परमेश्वर जरूर उसके लिए कदम उठा करके कार्य करेगा। Sometimes we commit severe sins and wrongdoings, and then we feel like comfortable and we continue our spiritual journey as if nothing had happened. But God will not give any peace in your heart. He will give you all kinds of trouble in your heart and make a drastic action to come back to repentance.
और जब आप पाप करते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं और भूल जाते हैं, भूल जा करके तुम्हारी जो आत्मिक यात्रा है उसको फिर आगे बढ़ाने का तुम प्रयास करते हैं, आप भूल जाओगे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। आपके मन में चैन ही नहीं देगा, आपके मन में शांति नहीं देगा। परमेश्वर वास्तव में बहुत बड़ा जो है आपके जीवन में परेशानियां और समस्या और बेचैनी को लाएगा, ताकि अपना पापों को प्रायश्चित करके आप आगे बढ़ पाओ। Therefore, what did God do in the midst of Jonah's sin? और योना के पाप के बीच में परमेश्वर ने क्या किया? Chapter 1, verse 4, we read that the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ships was like to be broken. और योना का पुस्तक उसका पहला अध्याय और हम लोग चौथा पद में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? वहां पर इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। Imagine here, in 20 years, Joseph's brothers had not come to confess and repent of their sins. और आप इस बात को सोच करके देखिए, यूसुफ का जो भाई लोग थे, अभी 20 साल बीत चुका है, लेकिन अपना पापों को उन्होंने जो है कबूला नहीं है, पापों का प्रायश्चित उन्होंने नहीं किया है। This brings some light to our own personal life to examine, are we in the same nature what Joseph's brothers were doing? Is that the state of mind that we are going through? We just want to examine ourselves. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि इस बात को देखते हैं कि हमारे जीवन में भी क्या ऐसे ही हम लोग करते हैं? क्या हम लोग जो है ऐसे ही तुरंत इस बात को भूल जाते हैं क्या? Thus, God was sending a storm to further awaken their conscience and bring them to repentance. और परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़ी एक आंधी को लेकर के आ रहा था, जो उन्होंने उस पाप को भूल गए थे, ताकि उस पाप को याद दिला करके फिर से वे लोग पश्चाताप करके उस पाप से प्रायश्चित वो कर ले। Now things are going on, and the next Joseph gave a command to fill their sacks with grain, to restore even every man's money to his sack, and to give them provisions for their journey. और अभी क्या हुआ था, हम लोग देखते हैं कि जो है अभी यूसुफ एक और काम करते हैं, जो अनाज थी उस अनाज को और पैसों को वो लोग डाल करके उस थैला में डाल करके ले जाने के लिए कहते हैं। So the Bible doesn't say that what Joseph's intention was for giving their money back. और बाइबल हमें ये नहीं बताती है कि उनका जो यूसुफ का यही सोच था कि पैसा वो वापस देना चाहते थे। However, on their journey back to Canaan, when one of them opened his sack, he saw his money, and there it was in the mouth of his sack. और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वे लोग कनान देश की ओर वे लोग जब जा रहे थे, उस वक्त एक भाई ने अपना जो थैला था, जो बोरा था, उसको खोल करके उसका मुंह खोलता है, तो वो देखता है कि उसका पैसा उस थैले में है। See, when he told his brother about the money, then their hearts failed them, and they were afraid. और आप देखिए, जैसे अपना भाइयों को कहता है कि देखो मेरे पास ये पैसा उन्होंने डाल दिया है कि पैसा है, तो सब के सब लोग इस बात को सुनते ही भयभीत हो गए थे। At this point, they only knew money was in only one bag. और ये जो वक्त थी, उस वक्त में उनको यही लगता था कि जो पैसा है वो एक थैला में एक ही भाई के पास ही है करके वे लोग सोच रहे थे। Look at verse 28. It is significant that they said to one another, what is that this God has done to us? और आप देखिए 28वां पद को हम लोग जब पढ़ते हैं तो वो लोग किस तरीके का बातें को करते हैं। आइए उस पद को हम लोग पढ़ते हैं, इस तरीके से लिखा गया है, तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो फेर दिया गया है, देखो वो मेरे बारे में है। तब
तब उनके जी ना रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है? देखो, this is the first time ever that any of Joseph's brothers mentioned the name of God. और अब देखिए, पहली बार यूसुफ का भाई लोग परमेश्वर का नाम को लेते हैं। This is a breakthrough because they were in essence admitting God would somehow, some way, someday punish them for their sin. और यही एक बात थी, वो लोग इस बात को कबूल रहे हैं, एक ना एक दिन परमेश्वर जरूर हमें दंड देंगे, अपने पापों के लिए वो दंड देंगे, इस बात को वो लोग कबूल रहे हैं। Fear of judgment is one way God awakens our conscience. और जो है न्याय का एक भय हमारे जीवन में जब आता है, उसी तरीके से परमेश्वर हमारा पापों को जो है बोध दिलाता है। In John's Gospel, chapter 16, verse 8, when Jesus said he would send the Holy Spirit, what did he say the Holy Spirit will do? और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 8वां पद में प्रभु यीशु मसीह जो है क्या कहते हैं, जब पवित्र आत्मा आएंगे तो वो क्या करेंगे? See, and when he has come, when the Holy Spirit has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. और अब उसमें हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। God has placed in each of us a conscience that can be suppressed, but that the Holy Spirit activates and causes us to realize this eternal, unchangeable truth. There is a payday for all unconfessed sins. और क्या होता है ना, हम लोग जो पाप करते हैं और न्याय के विषय में हम लोग बोध ही नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन पवित्र आत्मा आ करके हमें उस विषय को, उस पाप को बोध दिलाते हैं कि एक दिन ऐसा है जिस दिन सभी का न्याय होगा, सभी को एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। That's a lesson for us also. मेरे प्यारो, वो आपके और मेरे लिए भी एक सीख है। Every day when we come to the presence of God, we confess our sins and we should be washed and released from all this, and then have a clear conscience with the Lord in our life. और जब कभी परमेश्वर के सामने हम आते हैं, हमारी जो विवेक है उसको संपूर्ण रीति से शुद्ध करके एक शुद्ध और सिद्ध मन से परमेश्वर के पास जा करके उसकी आराधना करें। Now, fourthly, the apprehension of Jacob. It's an anxiety or a fear that something bad will happen. The apprehension of Jacob, Jacob the father. और अभी हम लोग देखते हैं कि जो है एक बहुत बड़ी विषय को हम लोग देखते हैं, याकूब जो है कुछ ऐसी अनहोनी घटना होने वाली है, इस विषय को लेकर के वो चिंता में पड़ गए हैं, वो भय खा रहे हैं। Yeah, verses 29 to 38, we can see upon arrival in Canaan, the 9 brothers told Jacob what had happened to them. और जो है 29वां पद से लेकर के 31वां पद में हम लोग देखते हैं, जब वो 11 भाई लोग लौट करके आते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा करके वो भयभीत हो जाते हैं। To complicate matters further, it happened as they emptied their sacks, that to their great surprise, each man's bundle of money was in his sacks. And when they and their father saw the bundles of money, they were afraid. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे ही वो लोग घर पे आ करके हर कोई अपना अपना थैला जो पोटला था उसको जो खोल देते हैं, उसका मुंह खोलते ही सभी लोगों का पैसा वहां पर दिखाई पड़ता है। वो पैसा को जो है देखते ही वे लोग अचंभित हो जाते हैं।
what would they do if they returned to Egypt? Joseph would treat them as thieves, and if they had Benjamin with them, what would happen to him? और आप देखिए उन लोगों का मन में क्या सोच और विचार चल रहा है। जब ये लोग मिस्र देश में लौट करके जाएंगे तो किस तरीके से यूसुफ उनके साथ व्यवहार करेगा, और भाई उनका जो भाई बिन्यामीन को लेकर के जाएंगे तो और क्या हाल होने वाला है, इसके लिए वे लोग चिंतित थे। That was the apprehension and the anxiety of Jacob then. और वही जो डर और भय हम लोग देख सकते हैं याकूब का मन में। The strange story and the mysterious refund of money only added to Jacob's apprehension. और जो है ये पैसा वापस ले आना और फिर वे लोग जो है पैसा नहीं दे करके आना, यही बात ही याकूब का जीवन में बहुत बड़ा भय को ले आया था। Also, if you look at verse 36, it appears that Jacob had always been suspicious of his son's account of what had happened to Joseph. और अब देखिए हर समय जो है याकूब अपने जो पुत्र थे उन पुत्रों के ऊपर वो हर समय संदेह कर रहे थे कि 36वां आयत को हम लोग जब देखते हैं तो अपना जो बेटा यूसुफ के साथ क्या हुआ था इस विषय को लेकर के उनके ऊपर संदेह करते थे। So Jacob says, and you have bereaved me, Joseph is no more, Simeon is no more, and you want to take Benjamin now. All these things are against me. Jacob was very much concerned. और अब देखिए जब यूसुफ को मेरे हाथ से तुम छुड़ा करके लेके गए, अभी सिमोन भी नहीं है और तुम बिन्यामीन को भी लेकर के जाना चाहते हो, ये सब कुछ जो है मेरे को विपत्तियां से भरा हुआ जैसा लगता है करके याकूब उनसे कहते हैं। Reuben sought to calm Jacob's fears by offering to give him his two sons as proof that they would bring Benjamin back safely. और रूबेन क्या करते हैं, अपना पिता से जो है गारंटी देते हैं कि जो है सिमोन को और उसके साथ साथ बिन्यामीन को वो वापस ले आने के लिए उनको प्रतिज्ञा देते हैं। However, Jacob did not want to risk the only remaining son of his beloved Rachel. और वो याकूब जो है अपना प्रिय पुत्र जो राहेल के द्वारा पैदा हुआ है बिन्यामीन को, वो जो है उनको बलि चढ़ाना नहीं चाह रहे थे। To lose him, Jacob said, would bring him with sorrow to the grave. और यदि उसको छोड़ दूंगा तो बहुत दुख के साथ मेरा मरे हुए कब्र में तुम ले करके आना करके वो कहते हैं। See, God was using the words of Jacob to amplify the voice of conscience. और अब देखिए परमेश्वर याकूब को इस्तेमाल करके जो उनका जीवन में जो उस पाप का बोध उनको दिला रहे थे। God uses the conscience of even the vilest or unpleasant person to try to bring them to repentance. और अब देखिए जिस व्यक्ति को तुम जो है भरोसा ही नहीं करते, जिसको तुम पसंद ही नहीं करते, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करके आपके जीवन में बोध दिलाते हैं। As an example, take the case of Herod Antipas, governor of Galilee. और उदाहरण के स्वरूप आप जो अंतिपस हेरोद के विषय में जो गलील में था उसको आप थोड़ा सा स्मरण करिए। He was well known for his immorality and cruelty. और वो जो है अपना अनैतिक जीवन के लिए और जो है क्रूरता के लिए वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। He was such a vile person and unpleasant person. और वो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा जो है वो सम्मान पाने का एक कोई व्यक्ति नहीं था, वो जो है बिल्कुल भी अच्छा व्यक्ति नहीं था। You know what he did? क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? He married Herodias, the wife of his brother, Herod Philip. और जो है हेरोद फिलिप जो उसका भाई था, उसने अपना भाई का पत्नी के साथ ही उसने शादी किया था।
So he violated the laws of God. और अब देखिए वो परमेश्वर का जो वचन था, व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को उसने अनाज्ञाकारी हुआ था, उल्लंघन किया था। He was openly condemned and called upon to repent by John the Baptist, whom King Herod respected and feared. और अब देखिए जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो साफ तरीके से सभी लोगों के सामने उसकी पाप को उजागर किया था, और हेरोद उसकी बहुत बड़ा आदर और सम्मान करता था। Herod into hell when she tricked him into beheading John. और आप देखिए जो है अंतिपस हेरोद का पत्नी, वो किस तरीके से चालाकी दिखाती है, चतुराई दिखा करके यूहन्ना का जो सिर को कलम करने के लिए वो कहती है। Sometime later, a word came to Herod about the ministry and the miracles of Jesus. और कुछ समय बाद जो है प्रभु यीशु मसीह का उस आश्चर्य कर्म के विषय में, आश्चर्य कर्म की संदेश उसके पास पहुंचती है। See, when Herod's tormented conscience heard of it, और अब देखिए जो है जिस बात को लेकर के उसने इतना परेशान किया था, और वही बात ही उसके सामने दिखाई पड़ता है, उसको बोध आता है। God was using his conscience to bring him to repentance. और परमेश्वर जो है उसकी विवेक को इस्तेमाल करके उसको पश्चाताप करने का एक अवसर दे रहा था। But Herod Antipas would not listen to his conscience. लेकिन हेरोद अंतिपास जो है अपनी जो विवेक की बोधता को सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं था। See, the last recorded mention of Herod Antipas reveals a chilling reality. और अब देखिए आखिरी बार जो हेरोद की बातों को जो लिखा गया है, उस बात को आप पढ़ेंगे तो आपको सच्चाई आपको समझ में आ जाएगा। While on trial, Jesus was sent from Pilate to Herod Antipas because the case was under his jurisdiction and he was in town. और आप देखिए उस शहर में ही था, उस वक्त जो है पिलातुस के पास से हेरोद अंतिपास के पास प्रभु यीशु मसीह को क्रूसार्पण होने से पहले उसके पास भेजा जाता है। Finally, Herod would meet the miracle working Jesus. और आखिरी में जो आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु यीशु मसीह हेरोद अंतिपास। See, this was Herod's chance to confess, but instead, what does he do? Luke 23:8 says, he desired of Jesus. And we read like this: now when Herod saw Jesus, he was exceedingly glad, for he had desired for a long time to see him, because he had heard many things about him, and he hoped to see some miracle done by him. हेलो, Can you hear me? Sabir brother, can you hear me? Yes, sir. I will. yes sir. Sabir sir, प्लीज आपका नेटवर्क आ रहा है? सबीर सर, भाई आपके उधर से बहुत आवाज आ रहा है। ओके, अब नहीं आएगा। yes uncle, please continue. Okay, finally Herod would meet the miracle working Jesus.
और आखिर में हम लोग देखते हैं कि आश्चर्य कर्म करने वाला उस प्रभु यीशु मसीह से हेरोद मिलता है। This was Herod's only chance to confess. But instead of confessing, what does he do? We read in Luke chapter 23, verse 8. करने के लिए क्या समय था, लेकिन वो क्या करता है? So he was only interested to see some miracles from Jesus, but not to confess his sin and to get straight with him. और आप देखिए उसका जो उद्देश्य यही था, उस आश्चर्य मसीह से मिलना चाह रहा था, ना कि अपना पापों से वो पश्चाताप। He was no longer sensitive to what was holy and right. So after they treated him with contempt and mocked him, they sent him back to Pilate to be crucified. Sabir? सिबिर सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? Okay, sir. Meanwhile, I will continue. He's breaking up. Yes, I will continue. Let us do. Okay. So you know why Herod could have the audacity to amuse himself with the sinless Son of God? Okay. और क्यों आखिर यूसुफ के जीवन में वो पाप रहित स्वभाव था जिसके द्वारा उनसे सभी लोग पूछने लगते हैं? We see the answer in Titus chapter 1 verse 15. To the pure all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving nothing is pure, but even their mind and conscience are defiled. और हम जिस बात को हम इसका जवाब हमको मिलता है तीतुस की पत्री 1:15 में, जहां पर हम पढ़ते हैं कि जो शुद्ध और पवित्र है उनके लिए सब शुद्ध और पवित्र है, परंतु जो अशुद्ध हैं उनके लिए सब वस्तुएं जो है वो अशुद्ध गिनी जाती हैं। If one ignores the repeated warning of conscience, as did Herod Antipas, we can eventually have what the Bible calls a conscience seared with hot iron. और जैसे कि हम इस बात को जानते हैं कि यदि हम बार बार जो हमारा विवेक गवाही देता है, यदि हम उसको नकार देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, तो जिस रीति से जो हेरोद ने किया था उसी प्रकार से यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि वो जो हमारा विवेक है वो उसके समान हो जाता है, जिसको हम एक गर्म और जो छड़ से उसको हम छलनी कर देते हैं। See, seared translates a Greek word. It's from which we get our English word cauterize. और जो यूनानी भाषा जो इसका मतलब होता है वो cauterize होता है। It is the idea of desensitizing to make insensitive to right or wrong. और वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो बेहोशी करने वाला जो कार्य था, जैसे कोई व्यक्ति यदि बेहोश होता है तो उसको फिर से होश में लाने के लिए इस का प्रयोग किया जाता था। It is the idea of desensitizing to make insensitive to right or wrong. We will not feel which is right, which is wrong. और वो इस प्रकार की प्रक्रिया है कि एक जो व्यक्ति को होश में है उसको बेहोश करने की प्रक्रिया होती है, और हम बेहोश होने के बाद में हमारे जीवन में क्या गलत है और क्या सही हम उसको नहीं समझ पाते हैं, और हम जो है वो सम्मोहन हो जाते हैं, हमारा विवेक जो है वो बेहोश की अवस्था में आ जाता है। To refuse habitually to listen to our conscience is to desensitize it. और यदि हम इसी प्रकार की बार बार इसको दोहराते रहते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम अपने विवेक को जो है वो
बेहोशी की और अवस्था में करते चले जा रहे हैं। So examine your life and my life to see if there is any unconfessed sin, because any sin you fail to confess will progressively desensitize your conscience. और मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन के लिए एक चेतावनी है, और आज हमको जांचना है, अपने आप को जांचना है कि मेरे और आपके जीवन में ऐसा कौन सा पाप है जिसका अभी तक मैंने अंगीकार नहीं किया है, और उसको अंगीकार नहीं करने के बाद में यदि हम इसी प्रकार से चले जाएंगे तो एक दिन वही पाप जिसको हमने अंगीकार नहीं किया है वो हमारे जीवन में जो है उसका प्रभाव बहुत भारी होने वाला है। What would be a good prayer to pray regularly so that we can have you and I can have an active, clear conscience and not one that is seared with the hot burn. मेरे प्रिय भाइयों, मेरे और आपके जीवन के लिए वो प्रार्थना कौन सी सही प्रार्थना होगी जिसको हम प्रत्येक दिन करने के साथ में हम जो है हमारा विवेक जो है प्रत्येक दिन के लिए शुद्ध और पवित्र हो जाएगा? वो कौन सी प्रार्थना है मेरे आपके? Look at Psalms 139 verse 23 and 24. हाँ, भजन संहिता जो है 139 का 24 और 25 आयत को देखिए। So we read in verse 23, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. और जहां पर हम इस रीति से पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि भजनकार जहां पर इस रीति से कहता है कि हे प्रभु तू मुझे खोज और मेरे मन को तू जांच ले और मुझे ढूंढ ले। Verse 24 says, and see if there is any wicked ways in me and lead me in the way everlasting. और वचन 24 कहता है और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। Let me conclude my words. After confessing all known sin and making apologies where appropriate, make sure and know that our sins has been totally taken care so we can have a clear conscience. और मेरे प्रियो, जब हम हमारे प्रार्थना के दौरान जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो हमको जब इस बात का एहसास हो जाता है और हम पूर्ण रीति से इस बात को मान लेते हैं कि मैंने अपने सारे पापों को मान लिया है, जाने में अनजाने में मैंने जो भी पाप किए उनको मैंने मान करके, और तब हमारा विवेक जो है शुद्ध और साफ हो जाता है कि मेरे पापों की क्षमा मुझे मिल चुकी है। We read in 1 John chapter 1 verse 9. We read like this: if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. और मेरे प्रियो, जिसको हम पहला यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं जहां पर प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों से हमको क्षमा करने और हमें सारे उस अशुद्धता से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Brothers and sisters, we need a thorough cleaning through Christ's precious blood and his word. और मेरे प्रियो, हमको जो है हमारे उस मसीह के उस बहुमूल्य लहू के द्वारा और लहू से ही हमारे पापों की क्षमा हुई है। May his name be glorified. परमेश्वर के धनी नाम की महिमा हो। Again, I apologize for all the delay and the trouble caused this evening. So we will be praying for that the Lord will enable us to be prompt in his presence to do his job in a better way. It's not apologies matter. मैं क्षमा चाहता हूं कि आज जो समस्या हुई है, बाधाएं आई हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हम इस अध्ययन को जो है और भी अच्छी रीति से इसको कर पाएंगे। Thank you so much. Thank you very much, dear Johnson Daniel sir, for the wonderful and very practical teachings that we could learn through you. Thank you so much for stirring our hearts and our conscience that in each day, what is our prayer? Even sometimes we pray and we don't examine our life. Sometimes we forget, but Lord will never forget. And that sin which we have not confessed, that will come in our way and that will become an obstacle. Thank you so much
for the wonderful message. May the Lord God bless you. Thank you so much. Thank you so much, dear uncle, for your wonderful message and wonderful teaching. Really, so many truths that you have brought out from the life of Joseph, and really it matters, the unconfessed sins if we have in our life, so it may hinders many blessings and provisions of God and many more things. Unconfessed sin could hinder. So therefore, thank you for reminding, sir, with the word of God. We are very much thankful to you, and on behalf of BDTI and Gwalior Assembly, really we are thankful to you very much. सभी भाई और बहन को बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग परमेश्वर का वचन को बहुत धीरजता के साथ प्रार्थना पूर्वक आप लोग बैठ के सुना, इसलिए परमेश्वर की महिमा हो. आइए आज के इस सभा को हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे. हमारे बीच में बॉबी डोनाल्ड भैया है, वे हमको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. बॉबी डोनाल्ड भैया. मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है, बढ़िया आ रहा है. आपका आवाज आ रहा है, बढ़िया. ब्रदर, आप ही प्रार्थना करके समाप्त करें. आइए हम लोग प्रार्थना करें. मेरे पवित्र दयालु सामार्थी परमेश्वर, आपके चरणों में आते प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो हमारे बीच में पिता जॉनसन दानियल सन ने दिया है प्रभु. अमेरिका से प्रभु जी उनका टाइम जो गड़बड़ा गया था पिता, उस टाइम के कारण थोड़ा लेट हुए, लेकिन अभी 8:30 बजे तक सुंदर वचन हमारे बीच में बांटने में मदद और सहायता के इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. मंच के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं. मंच को आपने बरकरार रखा प्रभु जी. ग्वालियर असेंबली BDTI की ओर से पिता राजेंद्र सर में जो बोझ दिया प्रभु, और प्रभु बोझ को आप पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. दर्शन को पूरा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं. प्रार्थना विनती कहते हैं भाई शिविर के लिए पिता, जो हिंदी अनुवाद करते हैं सुंदर रीति से, भाई दीपू भी जो प्रभु जी हिंदी अनुवाद करते हैं प्रभु, दोनों को आप क्या तो सौंप देते हैं प्रभु जी. और भी वक्ता देश विदेशों से जुड़े हरेकों को आशीष से भर दे प्रभु जी. जितने भी भाई बहन वचन को सुन रहे पिता, हरेकों को आशीष से भर दे प्रभु. प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, एक एक को संभालने वाला आप है प्रभु जी. कई समस्या रहती है, नेटवर्क की समस्या, नेट की समस्या पिता, कनेक्शन सही से नहीं मिल पाता है, वो सब आपके हाथों सौंप देते, सब ठीक करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी. बाकी शेष समय को भी आपके हाथों सौंप देते. विशेष प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए, जैसे कि सर के पापा जो बीमार हैं पिता, कैंसर है गले में प्रभु जी, उन्हें ठीक करने में मदद और सहायता कर. उनके फादर इल्ला है पिता, उनको भी ठीक कर मदद कर पिता. भैया स्वस्थ है और पिता वृद्ध है, आपके हाथों सौंप देते हैं. जो मदर इल्ला है प्रभु जी, उनको लिए प्रार्थना करते हैं. यूट्राइन कैंसर है प्रभु जी, उससे छुटकारा मिलने के लिए मदद और सहायता करना आपके हाथ में सौंप देते हैं. मेरे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो. सब ठीक करने वाला परमेश्वर, महान और सामर्थी दयालु परमेश्वर है. इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं. और भी तकलीफ में है, कष्ट में है, बीमार में, उन्हें छूकर चंगाई दे पिता. भी इसी वक्त स्वामी सहायता कर, हम आपसे मांगते हैं. सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु. फिर से एक बार सबको भाई बहनों को फिर से आपका तो सबसे छोटी सी प्रार्थना भाई दशरथ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी. भाई को लीड करने के लिए मदद किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं. और भाई के जीवन को आपका सौंप देते, भाई की सेवा को आपका सौंप देते हैं. सहायता और मदद करना मेरे परमेश्वर, सारी याद और इज्जत सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं. छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता खुदावा प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर के मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिताजी. आमीन. 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 बहुत बहुत धन्यवाद सभी को. जय मसीह की. जय मसीह की लांसी अंकल. जय मसीह भैया. सबको जय मसीह के. जय मसीह की बेदी अंकल. दानियल सर, थैंक यू सो मच सुंदर वचन के लिए. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा वचन दिया.